Okay. So, today we have an amazing speaker, someone who is going to be speaking to us all the way from India, Pujya Agamveta Vaibhav Shriji. Um, some of the community members who have been taking advantage of our Sunday Swadhyay series, which we recently started, a few weeks ago, is already familiar with her. But those of you who have not attended the Swadhyay, I will go through a brief bio and give everyone an introduction. So Agamveta Vaibhashri ji, she's a multifaceted personality. You can call her a sadhvi, a philosopher, a motivational speaker, or a contemporary thinker. Um, she's born in Jodhpur, which is, for those of you who are familiar with geography of India or not familiar with geography of India, that's in Rajasthan, India. It's the one of the western states, neighboring states to Gujarat. While studying, BA from Kamala Nehru University in Jodhpur, she became more inclined towards religion and took austerity at the young age of 20. She's very well versed in Eastern and Western philosophies like Jainagam, Veda, Quran, and Bible. Pujya Shri Virat Guruji was her spiritual guru and source of inspiration. She's an original thinker, I might add, an erudite saint. She is widely known for interpreting ancient scripture in a contemporary style. Having authored more than 25 spiritual books, she has delivered hundreds of discourses and workshops that particularly appeals to the youth and forward thinkers. Some of you might be familiar with the series of YouTube lectures that she has, and it has like an amazingly high number of followers that I have seen. And a major if you look at the commentary, a lot of younger generation post wonderful comments as a for each of those YouTube videos. She's a devoted Guru Bhakt, gifted with a beautiful, calming voice, very humble, very affectionate, and a vibrant persona. Her clear vision, impeccable knowledge makes her an extraordinary orator. As Lord Mahavir once said, Mano mat jano. What that means is don't just blindly believe, but gain a complete understanding. Continuing with the leadership of Lord Mahavir, she is now upgrading herself in a new dimension of life. In August of 2021, Sadhvi Vaibhav Shriji decided to give up her Sadhvi attire and took a giant leap to find her own truth with Swami Vikas Jain and the conviction that religion is all about inner harmony and not limited to any specific person, place, traditions, and thoughts. The thoughts and views of Vaibhav Shriji are not only spiritualistic, but also scientifically analytical, which is very relevant in this modern age. And I would say, especially in the United States, where questioning the established beliefs and spiritual system seems to be the norm, right? So she puts forward that tradition, and she should be validated with the touchstone of one's own intelligence and modified to suit current times. So with that, I am so delighted to introduce to you and present to you Pujya Vaibhav Shriji. She's going to be talking to us about Jainism and more specifically how to apply Jain values in day-to-day life. And I requested her to cater her content to more of a North American life, and she has assured me that most of her thoughts are typically very easy to apply no matter where you are. Um, so I look forward to an engaging session. Just a couple of ground rules before I turn it over to her. If you have any questions, and she loves questions, if you have any questions, let's use the chat feature to pose those questions, and I will try to
find an opportunity to pose those questions to her. But she might also poll the audience once in a while, and that's okay to respond if you at that point would like to interject and say something. She loves interactive sessions, and she's very delighted to speak to us. We're a small community, but that's exactly the kind of setting that she enjoys speaking to. And then after the session, if you have any feedback regarding the session, feel free to reach out to any one of us. You can reach out to me. My information is on our JSCNC website, and I'm happy to discuss it further. So with that, Pooja Vaibhav Shriji, please go ahead. Jai Ho. Arihantaram Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Uvajjayanam Namo Loe Savasahunam Esu Panchinamukkaro Sava Pavapanasano Mangalanancha Savvesyam Padhamam Havai Mangalam. गुरु चरणों में प्रणाम। समस्त गुरु भक्तों की असीम श्रद्धा और भावनाओं को बहुत बहुत साधुवाद। जय हो। नॉर्थ अमेरिका की ये जो रालेगांव की सोसाइटी है, जिसके जेना के हेड आनंद शाह जी है और प्रवीण शाह जी, आप सब ने अपनी मंथली मीट में हमें इनवाइट किया और आप ये चाहते हैं कि जो जैन यूथ है, यूएसए में रह रहा है, उसे कैसे हम इंट्रोड्यूस करें अबाउट जैनिज्म, कि वे लोग अपनी डे टू डे लाइफ में जैनिज्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये बात केवल यूएसए के लिए नहीं है, वर्ल्ड वाइड जितने भी जैन लोग जहां भी रह रहे हैं, सबके लिए ये बहुत ही करंट टॉपिक है। तो जैनिज्म को हम डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस टॉपिक पर बात शुरू करने के साथ ही पहले मैं चाहूंगी कि कुछ चीजें क्लियर हो जाए। उसमें फर्स्ट थिंग यह कि आज जिसको हम जैनिज्म के नाम पे समझ रहे हैं, आज जैनिज्म के नाम पे जो कुछ भी मत, सिद्धांत, बिलीव्स, मान्यताएं हम अपनी करंट जनरेशन में और अपनी ओल्डर जनरेशन में देख रहे हैं, अगर हम देखें उनका असली जैन धर्म से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। Can you go on mute, someone? Sheetal Sakla. I think. Ketan, can you intervene? Sorry about that. आज जिसको हम जैन धर्म समझ रहे हैं और जिसको हम जैन समाज कह रहे हैं, ये जो पिक्चर जैनिज्म के हमारे सामने है, इस पिक्चर को देख करके ही मुझे नहीं लगता कि कोई यंग ब्लड
कोई अवेकन माइंड वाला व्यक्ति इस जैनिज्म के लिए श्रद्धा से भरे, क्योंकि यही तो एक वो धर्म है जो आदमी को फियरलेस होना सिखाता है। और मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ तो मोस्टली लोग सब फियर के साथ ही जी रहे हैं। हम सबके भीतर बहुत ज्यादा कर्म बंधन का डर, पाप का डर, समाज का डर और न जाने कितने तरह के डर मौजूद है। और जब तक डर मौजूद है और इन बहुत तरह के फियर्स को हम प्रोपोगेट करते हैं, खुद भी फियरफुल है और दूसरों को भी fearful बना रहे हैं, it means we are not going on the right way, on the right path. Actually, we are not Jain. So, पहले तो ये क्लियर करते हैं कि जो कुछ आज जैनिज्म के नाम पे चल रहा है, उसका जैन होने के साथ में कनेक्शन दूर दूर तक नहीं है। उसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया फियर, कि हम सब फियरफुल है और फियरफुल बनाए जा रहे हैं, चाहे किसी भी नाम से, तब तक हम जैन तो नहीं हो सकते। एक बात। एंड द सेकंड पॉइंट, जब तक हमें चीजों को मानना सिखाया जा रहा है, रिसर्चर होने की बजाय, खोजी होने की बजाय, जिज्ञासु होने की बजाय हमें यह सिखाया जा रहा है कि बस बिलीव कर लो, श्रद्धा कर लो, विश्वास कर लो, मान लो, तब तक समझना कि हम जैन पाथ पे तो नहीं है। क्योंकि जैन पाथ जो है, जैन वे जो है, वो मानने वालों के लिए नहीं है, वो जानने वालों के लिए है। दिस इज द वे टू नोइंग, टू नो योरसेल्फ एंड टू नो दिस यूनिवर्स ऑल्सो। ब्लाइंडली किसी पे भी फेथ करना, भरोसा करना, विश्वास करना या किसी सिद्धांत को भी मान लेना बिना एक्सपीरियंस के, बिना अनुभव के, आप किसी भी बात को अगर मान रहे हो आंख बंद करके, तो आप जैन वे पे तो नहीं हो। तो मैं ये कुछ बातें इसलिए क्लियर करना चाह रही हूँ क्योंकि अभी तक हमारे नजरों में जो जैन वे चल रहा है, जिसको हम जैनिज्म कह रहे हैं, जैन समाज कह रहे हैं, वहां पर ये सब बातें हैं। लोग कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ कर्म पे, मैं विश्वास करता हूँ आत्मा पे, मैं विश्वास करता हूँ धर्म पे, मैं विश्वास करता हूँ साधु पे, मूर्ति पे, पूजा पे, मैं विश्वास करता हूँ। जब तक ये विश्वास करने वाली बातें हैं, तब तक वहां पर जैन वे है ही नहीं। क्योंकि जैन वे नहीं कहता कि टू बी बिलीवर, जैन वे कहता है टू बी रिसर्चर, खोजी बनो, जानने वाले बनो। आप कहोगे ऐसी बात आप क्यों कह रहे हो? तो मैं क्लियर करना चाहूंगी कि मैं ऐसी बात क्यों कह रही हूँ। क्योंकि जैन शब्द का इटसेल्फ जो मीनिंग है, वह है जो जानने वाला है, वन हु इज नोअर, जो जानने वाला है। जिन, वह जिन है जिसने खुद को जान लिया, जिसने खुद को जान लिया कंप्लीटली, हु नोज हिमसेल्फ। दूसरों की रेफरेंस से नहीं, किसी के कॉन्टेक्स्ट से नहीं, खुद के अनुभव से। जिसने खुद को जाना वो जिन है, और जो खुद को जानने की यात्रा पे चला है वो जैन है। यहाँ जैन का संबंध किसी कास्ट से, किसी क्रीड से नहीं है। हम जन्म से कभी जैन होते ही नहीं है। जैन इज अक्वायर्ड क्वालिटी। To be Jain is just like to get an adjective with your life. ये एक विशेषण है जो हमने अक्वायर किया है अपनी विशेषताओं के द्वारा। जैसे महावीर का नाम महावीर नहीं था, उन्होंने महावीर नाम अपनी भीतर की कुछ क्वालिटीज के कारण से अक्वायर्ड किया। उनको लोगों ने महावीर कहा। क्यों महावीर कहा? क्योंकि वो कभी भी किसी भी हालत में घबराए नहीं, डरे नहीं।
और दूसरों को जीतने की बजाय खुद को जीतने में लगे, इसीलिए वो वीर ही नहीं महावीर कहलाए। देवताओं ने बताया कि हमने इनको भयंकर यातना दी, लेकिन ये फिर भी नहीं घबराए, इसका मतलब है ये वीर ही नहीं महावीर है। तो ये महावीर होना उनका नाम नहीं था, ये उनकी क्वालिटीज की वजह से उनको मिला हुआ एक सम्मान था, एक विरुद्ध था, एक एडजेक्टिव था। ऐसे ही जो जैन शब्द है वो कोई जन्म से कोई जैन हो जाए पॉसिबल ही नहीं है। कोई वो व्यक्ति जिसने अपने आप को जानने के मार्ग पे आगे बढ़ रहा हो, रिसर्चर हो, खोजी हो, सत्य का खोजी हो, धर्म का खोजी हो, वो व्यक्ति जैन हो सकेगा, हो सकता है। खोजी जैनी होगा, मानने वाला नहीं। मानने वाला भक्त होगा, मानने वाला कोई और तरीके की यात्रा पे जा सकता है, पर जैन होने का मतलब है जो जानने की यात्रा पे चला है। We should be very clear about the word meaning of Jain also. जो खुद को जानने की यात्रा पे चला वो जैन, जो खुद को जान चुका वो जैन। ऐसे ही जो खुद को जगाने की यात्रा पे चला उसी को हमने बुद्ध बोला था, कि जो जाग चुका वो बुद्ध, और जो जागने की यात्रा पे वो बौद्ध। और हम सब ने इन सब ज्ञानी पुरुषों के शब्दों को सांप्रदायिक अर्थ दे डाले। मतलब हमने इन सब चीजों को अपने अपने सोच में बांट दिया और फिर सबको अलग अलग कर दिया। इसीलिए मैं कई बार समझती हूँ कि जो जिसको आज हम जैन समाज कह रहे हैं, इसमें तो कोई थोड़े बहुत मुट्ठी भर लोग भी जैन मिल जाए तो बड़ी आश्चर्य की बात है। लेकिन पूरी दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं जो वैज्ञानिक है, जो इंजीनियर होंगे, जो डॉक्टर होंगे, जो कई अलग अलग फील्ड्स में होंगे, और जिन्होंने हो सकता है इस जैन धर्म के शब्दावली को कभी सुना भी नहीं हो, पढ़ा भी नहीं हो, लेकिन वो अपने जीवन भर खोजी है, खोज कर रहे हैं। और उनकी खोज का विषय केवल बाहर की दुनिया ही नहीं, अपने आप की अंतर की दुनिया भी है। और जो अपने अंतर की दुनिया के लिए जागरूक होकर यात्रा कर रहे हैं वो जैन है। चाहे वो एकांत ध्यान में बैठे होंगे, चाहे मौन में होंगे, चाहे ध्यान और मौन न करते हुए कर्म योग को साध रहे होंगे, लेकिन वो असली जैन है जो जागरूक होकर के अपने आप को जानने और खोजने के लिए सतत तत्पर है, सतत निष्ठावान है कि मैं यहाँ पे इस जीवन में आया क्यों, मैं अपने आप को जानू, मैं हूँ कौन, किस लिए आया, किस दिशा में जा रहा हूँ। जिनके भीतर ऐसे कोई प्रश्न खलबली मचा रहे हैं कि मैं हूँ कौन, और ये हकीकत है। हम सब लोग इस दुनिया भर की जानकारियां गूगल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर खुद को जानना हो तो वो तो हमें कोई गूगल नहीं बताएगा कि मैं कौन हूँ। वो तो हमें अपने ही भीतर झांक करके जानना होगा ना। और ये प्रश्न खलबली मचाए, ये प्रश्न भीतर उठ जाए, ये जिज्ञासा भीतर उठ जाए कि सारी यात्रा जो मैं कर रहा हूँ, मुझे दिखलाई पड़ रही है, वो सारी यात्रा का अंत क्या है। एक क्षण में मौत आती है और जितनी भी हमने चीजें इकट्ठी की है वो सब बाढ़ में कैसे कोई तिनका बह जाए ऐसे सब बह जाती है। तिनका तो शायद किसी दिन वापस बाढ़ में ऊपर भी दिखलाई पड़ जाए, लेकिन जो हमने संयोग, जो भी सामान इकट्ठे किए, जो भी सम्मान इकट्ठा किया, जो पहचान इकट्ठी की, जो भी सारी हम जिंदगी भर जिन चीजों के पीछे लगे हैं, वो सब चीजें क्षण भर में, क्योंकि आंख बंद हुई और ये सपना खत्म, नया सपने में चले जाएंगे, तो हमने खुद को तो जाना ही नहीं। तो ये जो सेकंड पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ वो ये है कि वो जैन नहीं हो सकता जो बिना जाने, बिना जानने के रिस्क लिए, बिना जिज्ञासु बने ये सोचता हूँ कि मैं जन्म से घर में पैदा हो गया और जिस घर में तो मैं जैन हो गया हूँ। नहीं नहीं, उसका जैन होने से कोई नाता नहीं है। वो कहला सकता है जैन, क्योंकि आजकल कहलाया जा रहा है, लेकिन हकीकत में जैन कोई जाति नहीं है। जैन एक वह पद है, एक वह काबिलियत है, एक वह योग्यता है जो आदमी को अपने जीवन से खुद से ही प्रकट करनी होती है। तो हम इस जैन शब्द को अगर समझ लेंगे तो हमें जैनिज्म की पकड़ खत्म हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट था कि जो फियरफुल है वो जैनी नहीं हो सकता, एंड द सेकंड पॉइंट जो बिलीवर है, ब्लाइंडली बिलीवर है, वो जैनी नहीं हो सकता। एंड द थर्ड पॉइंट वो भी हम जरूर पहले से ही क्लियर कर लेते हैं कि जैनी होने का मतलब ये नहीं है
कि केवल हम कुछ नियमों को पाल ले तो हम जैनी हो जाएंगे। जैसे कि जैन समाज में कुछ नियम है, रात को नहीं खाना, आलू प्याज नहीं खाना, फला नहीं खाना, फला पहनना, फला बोलना, फला जगह जाना, फला क्रिया करना, फला दिन फला नियम पालन कर लेना तो हम जैनी हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, केवल कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स और कुछ रिचुअल्स को फॉलो कर लेने से, कुछ कस्टम्स को फॉलो कर लेने से हम जैनी हो जाते हैं? तो मैं कहना चाहूंगी बिल्कुल नहीं। हम कहला सकते हैं लेकिन हो नहीं सकते। दिस इज द थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट, कि जैन के आगे जब हमने ISM लगा दिया, जैन इज्म लगा दिया, वैसे ही हमने फिर गड़बड़ी कर दी। क्योंकि जैसे हम इज्म लगाते हैं वैसे ही हम चीजों को संकुचित कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। और सीमित करते ही अपने अपने आप को भी एक जैन होने के साथ आइडेंटिफाइड करना शुरू कर दिया कि हम जैनी हो गए। लेकिन जैन होने का मतलब ही है जो इस सारे फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से जाग चुका है, वो सारी रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन से अपने आप को परिचित कर चुका है कि ये सारा मैंने जो भी लबादा ओढ़ा हुआ है, जो कुछ भी मैंने अपने आप के साथ कलेक्ट किया है, दैट इज नॉट रियल मी, वो मेरा असली स्वरूप नहीं है। जिसको ये समझ आ गया है वही तो इस यात्रा पे आगे चलेगा। तो हमने इज्म लगा के फिर एक गड़बड़ी कर दी, जैनिज्म। इट्स ओके, हम बोल रहे हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ राइट वे टू स्पीक एंड टू थिंक ऑल्सो। जैनिज्म इज नॉट अ इज्म। जैन होने का मतलब जानकार होना। और अब जैन होने के लिए क्या क्वालिटीज हम अपने अपने डेवलप कर ले कि हम जैन हो सके, अब हम उसकी बात करते हैं। पहले हमने 4 पॉइंट्स वो क्लियर किए कि ये अगर हम इससे हम मान रहे हैं कि हम जैनी हैं, तो नो, दिस इज नॉट द राइट वे टू बी जैन। ओके, अब हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में जा रहे हैं इस टॉक के, कि तो कैसे हम जैन हो सकते हैं। उसके लिए भी हम बात करते हैं फिर से 4 शब्दों की। अगर वो 4 क्वालिटीज हम अपनी लाइफ के अंदर डेवलप करते हैं तो इट मे कि हम जैन होकर के अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, खुद को जान सके, जिसके लिए हम जीवन में आए वो कंप्लीट कर सके। तो चलो हम बात करते हैं वो 4 क्वालिटीज क्या क्या है। द फर्स्ट क्वालिटी टू बी जैन इज टू बी नॉलेजेबल, टू बी अंडरस्टैंडेबल। समझदारी होना, समझदारी होना जैन होने के लिए, या टू बी जैन या जैनिज्म, जिसको हम आपने टॉपिक दिया जैनिज्म इन डे टू डे लाइफ, हाउ कैन वी अप्लाई जैनिज्म। तो मैं यह कह रही हूँ नॉट ओनली जैनिज्म, टू बी जैन वी शुड बी अंडरस्टैंडेबल। हमें अपने भीतर समझदारी प्रकट करनी होगी, और समझदारी सबके भीतर है। दुनिया में कोई इंसान तो ऐसा है ही नहीं जिसके अंदर समझदारी ना हो। समझदारी का मतलब है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो जानते हुए करें, वो जागते हुए करें, चाहे सोच रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं, चाहे कर रहे हैं। हम हर एक क्रिया में जागरूक रहे तो हम समझदार होते हैं। हम हर एक क्रिया को जानते हुए करें, होशोवास में करें, जानते हुए करें, तो हम समझदार होते हैं। अब बात यह है कि जब समझदार सभी है तो या समझदारी को लिए क्यों जैन होने से समझदारी होती है, समझदारी होने से जैन होता है, ऐसा क्यों जोड़ा जा रहा है? तो एक वर्ड और इसके साथ हमें कनेक्ट करना होगा कि हम सब की जो समझदारी होती है ना, वो अक्सर दूसरों के प्रति हो रही है। हम दूसरों को देख देख करके सोचते हैं, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको ऐसा बोलना चाहिए, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इनको ऐसा सोचना चाहिए, इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब तक अदर ओरिएंटेड हम अपनी सारी समझदारी को अप्लाई कर रहे हैं, तब तक हम जैन होने के पथ पर नहीं है। समझदार सभी है, लेकिन तकलीफ क्या है कि हम अपनी सारी समझदारी को दूसरों पर केंद्रित करके जी रहे हैं, और पूरी टाइम हमारे माइंड के अंदर जो फाइल्स चल रही है वो इसी तरह की चल रही है, कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है, और किसको क्या करना चाहिए और किसको क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम इस डायरेक्शन से हट करके ऐसे हो जाए कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, किस दिशा में जा रहा हूँ, अपनी लाइफ को किधर लीड कर रहा हूँ, कैसे जी रहा हूँ, मेरे जीने की हर क्रिया का मकसद क्या है, अगर हम पूरी टाइम अपने आप के प्रति सजग होकर के जीने लग जाए, तो पता है क्या होगा, हमारी सारी समझदारी बाहर अप्लाई होने की बजाय खुद के ऊपर अप्लाई होने लगेगी।
अब हम बाहर से भी सीखे चाहे कहीं से भी सीखे, लेकिन एप्लीकेशन खुद के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा अगर हमारी दृष्टि अपने ऊपर आ गई तो। यहां से यात्रा शुरू हो, ये हम अपनी बुद्धि का, अपनी समझदारी का उपयोग जो है वो दूसरों को रीड करने में नहीं, खुद को रीड करने में लगाए। दूसरों को जज करने के लिए नहीं, दूसरों को इवेल्युएट करने के लिए नहीं, खुद के लिए लगाना शुरू करें। तो पता है बड़ा मजेदार होगा कि जैसे ही हम बढ़ने लगेंगे, हमारे भीतर की समझ बढ़ने लगेगी, तो हमारे भीतर शुद्धि चालू हो जाएगी। समझ बढ़ने के साथ ही शुद्धता चालू हो जाएगी। No. Beat. समझदारी या नॉलेज बढ़ने के साथ ही साथ अगर प्योरिटी बढ़ रही है तो इट मीन्स नॉलेज राइट वे पे जा रही है। नॉलेज बढ़ने के साथ अगर प्योरिटी नहीं बढ़ी, इम्प्योरिटी रह गई, इसका मतलब है नॉलेज राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही है। दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी, जिसको हम सबके पास वो क्वालिटी तो है ही, बस हमें उस क्वालिटीज को अपनी दिशा में अपने आप पर यूज करना है कि कैसे हम अपनी समझदारी को अपने ऊपर लगाना शुरू करें। अब आप कहोगे ये कोई बड़ी बात है, समझदार हम सभी, हम सबको पता है क्या कैसे कपड़े पहनना, कैसे बोलना, कैसे खाना, लेकिन क्या हमें अल्टीमेट पता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं? अगर ये नहीं पता है तो अभी हमें जागरूक होने की जरूरत है। हमें अपने आप से सवाल करना होगा कि मैं जो कुछ भी कार्य कर रहा हूँ उन सारे कार्यों को करने के पीछे उद्देश्य क्या है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ। तो हम क्यों ना खोज करें कि हम सब लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास बुद्धि है, समझदारी है, तो हम अपने ऊपर अप्लाई तो करेंगे ना। अप्लाई करें, खोजिए, तो समझ आएगा कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। क्या यही पर्पस है कि बच्चे हुए, जवान हुए, पढ़ाई लिखाई करी, पैसा कमाया, शादी करी, बच्चे किए और बच्चों की चिंता करते रहे, और जितना कुछ इकट्ठा किया था वो सब कुछ छोड़ करके एक दिन आंख बंद करी और मर गए, जैसा कि हम अपने चारों लोगों को करते हुए देखते आ रहे हैं। क्या यही सब कुछ करने के लिए हम पैदा हुए हैं? नहीं नहीं, इतना कुछ तो नहीं, कुछ और के लिए हम आए हैं। हम केवल इस फिजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए और फिजिकल अपनी आइडेंटिटी को इस दुनिया के अंदर कुछ स्टेब्लिश करने के लिए पैदा नहीं हुए। कुछ और है हमारे भीतर जिसको हमें एक्सप्लोर करना है। वो क्या है? खोजेंगे तो पता लगेगा कि हम सारे लोग अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, विस्तृत करना चाहते हैं, फैलना चाहते हैं, लेकिन हम सब फैलने की दिशा बाहर की दिशा में सोचते हैं कि बाहर कैसे हर चीज को बढ़ाता रहूं, फैलता रहूं। लेकिन जो जानकार लोग हैं उन्होंने बताया कि बाहर में हर चीज लिमिटेड है और हर चीज टेम्परेरी है। कि हमारे भीतर एक और डायमेंशन है जो अनलिमिटेड है, जो परमानेंट है, और उसको हम कैसे रेस कर सकते हैं, उसके लिए ये इंसान का जीवन में हम आए हैं। इसको ऐसे समझे कि एक कॉन्शियस डेवलपमेंट है, एक फिजिकल डेवलपमेंट है। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए तो हम सारे लोग लगातार काम कर ही रहे हैं, लेकिन उससे किसी भी आदमी को शांति नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता, या उसको कह दो कि उसको खुशी तो मिलती है लेकिन परमानेंट खुशी नहीं मिलती। और हम सब लोग खुश होना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, दुखी कोई भी नहीं रहना चाहता। दुख किसी को भी नहीं चाहिए। सबको क्या चाहिए? यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है आनंद शाह, है ना? अच्छे से याद रह जाएगा। सबको क्या चाहिए? आनंद चाहिए। हर कोई व्यक्ति आनंद जीना चाहता है, कोई भी कष्ट में नहीं जीना चाहता, कोई भी दुख में नहीं जीना चाहता। और आनंदित भी कैसा आनंद चाहिए सबको? हम सबको परमानेंट आनंद चाहिए, टेम्परेरी आनंद नहीं चाहिए जो आज और कल चला जाए, जो आज तो हंस रहा है कल नाराज हो जाए, रूठ जाए, भैया ऐसा आनंद नहीं चाहिए हमको। हमको ऐसा आनंद चाहिए जो परमानेंट जॉयफुल रहे। वो आनंद कैसे हो सकता है? उस दिशा में अपनी समझदारी का उपयोग करना, दैट इज द राइट वे टू बी
अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडेबल। राइट नॉलेज तभी होगी जब हमें ये समझ में आए कि हमें आनंद चाहिए और उस आनंद को हम परमानेंट कैसे अपनी जिंदगी में प्रकट कर सकते हैं, उस दिशा में हम कैसे जाए। तो हमने अपनी जो योग्यता है, जो काबिलियत है, उसको हमने राइट वे पर उसका यूज किया है। और राइट वे में यूज करेंगे तो पता क्या होगा, अब अपनी सारी समझदारी हर घटना में इस बात को प्राथमिकता देंगे कि हम सब लोग अल्टीमेट हैप्पीनेस चाहते हैं, परमानेंट हैप्पीनेस चाहते हैं। हम सब लोग इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस चाहते हैं। और वो कैसे मिल सकती है? वो तभी मिल सकती है जो जब हम अपनी काबिलियत को अपने कॉन्शियस डेवलपमेंट के लिए यूज करने स्टार्ट कर दें। दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी टू बी रियल जेन। अब इसके लिए हमें किसी रिचुअल्स की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें हर काम को करते हुए केवल जागरूक रहने की जरूरत है। जैसे हम दुकान जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, या कहीं भी कुछ भी काम करने जा रहे हैं, तो हमारे पास में पर्पस क्लियर है कि हम ऑफिस, दुकान, जॉब इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें पैसा कमाना है। जैसे कोई शादी कर रहा है तो उसका पर्पस क्लियर होगा शायद कि मैं शादी क्यों कर रहा हूँ। एक में क्लियर हो, कई लोगों का क्लियर नहीं होता है, लेकिन इट शुड बी ऐसे। आप कुछ कहीं भी घर से बाहर जा रहे हो तो आपका पर्पस क्लियर है। ऐसी हर घटना में हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हर चीज हम इसलिए कर रहे हैं कि हम आनंदित हो सके। तो हमारा वो परमानेंट आनंद कैसे पॉसिबल है, उस दिशा में अपनी समझदारी का उपयोग करने लगे तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि कल गुस्सा किया और दुख पाया, तो अब गुस्सा करके दुख पाने का ही रास्ता मुझे जीना है, और वो रास्ता नहीं जीना जैसे गुस्सा करो और दुख पाओ। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, अब मैं उस ऑप्शन को खोजने लग जाऊंगी। तो इस तरह से जिंदगी भर मैं अपनी गलतियों से, अपने परिवेश, अपने वातावरण, एटमोस्फेयर में मौजूद लोगों की गलतियों से सीखती जाऊंगी और सीख करके खुद को डेवलप करती जाऊंगी। तो क्या हुआ, मैंने अपनी समझदारी को अपने ऊपर प्रयोग करना शुरू किया और लक्ष्य एक ही रखा कि मुझे इंडिपेंडेंट परमानेंट हैप्पीनेस की जिंदगी जीनी है। उसके लिए मैं यहाँ पर हूँ, और वो पॉसिबल तभी है जब मैं अपने आप को शुद्ध करती जाऊँ, प्योर करती जाऊँ। एंड दैट वे मैं अपनी समझदारी को बढ़ाती जाती हूँ, ज्ञान को बढ़ाती जाती हूँ, और वो ज्ञान वो है जो मुझे हल्का करता है। अब मैं यहाँ उस ज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ जब हमने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, शास्त्र रट लिए, ठोकरे रट लिए, फिर कुछ क्रियाएं कर ली, हमको लगता है हम ज्ञानी हो गए। लेकिन अंदर में देखते हैं तो अंदर में तो हमारे भीतर उदासी भरी है, निराशा भरी है, किसी फ्रस्ट्रेशन भरा है, कुछ डिजायर्स भरी है, और वो सब के लेकर के हम परेशान है। इसका मतलब है हम ज्ञानी नहीं हुए। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग टू बी जेन। हम समझदार बने और अपनी समझदारी को अपने कॉन्शियस डेवलपमेंट के लिए लगातार उपयोग में लेते जाएं। तो क्या होगा, हमारी सेल्फ स्टडी जारी रहेगी। अब तो सेकंड पॉइंट कि कैसे हम जैनी हो सकते हैं, कैसे हम जैनिज्म को अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं हर मोमेंट। उसका सेकंड क्वालिटी जो हमें अक्वायर करनी है, हम सबके पास तो है ही, बस हमें उसके प्रति थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। वो सेकंड क्वालिटी क्या है? टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना। ये बहुत बड़ी घटना है। जैसे सुनने में तो बहुत छोटी सी बात लगी, अरे ईमानदार होना क्या बड़ी बात है, ईमानदार हो जाएंगे। लेकिन क्या हम है ईमानदार? क्या हम ऑनेस्ट है? जैसे भीतर वैसे बाहर है? अगर हम अपने से ही बात करें तो हम सबको पता है अपने अपने अंदर की चोरी, कि हमारे कितने सारे चेहरे हैं। वी ऑल आर मल्टी फेसेटेड। किसी के सामने कुछ और, किसी के सामने कुछ और। जैसे भीतर है वैसे हम बाहर नहीं है। हम ईमानदार नहीं है। और जब तक हम ईमानदार नहीं होते तब तक जीवन भर कंफ्यूज ही रहेंगे। हम दुनिया के किसी कोने में क्यों ना रह रहे हो, और कितनी भी डिग्रीज हमने क्यों ना हासिल कर ली हो, और कितना भी बड़ा ओहदा, बड़ी पोस्ट हमें क्यों ना मिल गई हो, और कितने भी सारे पैसे हमने क्यों नहीं इकट्ठे कर लिए हो, लेकिन अगर हम ईमानदार नहीं है तो एक नियम निश्चित है कि जो व्यक्ति ईमानदार नहीं है वो आदमी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ही, वो परेशान ही रहेगा और कंफ्यूज ही रहेगा। इफ वी आर कंफ्यूज, इफ वी आर कॉम्प्लिकेटेड, it means we are not honest within ourselves, within ourselves। अब आप कहोगे लो, जैनिज्म में ये बात तो कभी हमने सुनी नहीं, ईमानदार होने वाली बात। यहाँ तो ये सिखाया जाता है अहिंसा को पालो, संयम को पालो, व्रत नियम को पालो,
लेकिन ये सारी बातें अहिंसा, संयम, व्रत, नियम, ये सारी बातें ऑटोमेटिक लाइफ में आएगी अगर हमारे पास में ईमानदारी आ गई तो। समझदारी आई और ईमानदारी आई। और ईमानदारी का मतलब क्या है कि हम जो जीने के लिए हैं, हम सब डिफरेंट है, ऐसे सब एक है लेकिन वैसे सब डिफरेंट है, सब यूनिक है। तो हम सब जो जीने के लिए जीवन में यहाँ पर है, हम उसके अपने जीवन के प्रवाह के विरुद्ध ना जाएं, हम अपने जीवन के प्रवाह को समझने वाले बने और जैसे भीतर हो वैसे बाहर बनने लगे। तो पता क्या होगा, सारी जो पूरे समाज में जो हिपोक्रेसी होती है, जो पाखंड पैदा होता है, हम उस पाखंड के पिंजरे से मुक्त हो जाएंगे। दैट इज द वे ऑफ लिबरेशन। ईमानदार होते ही हम पाखंड की दुनिया से बाहर हो गए। दिस इज द वे ऑफ लिबरेशन। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को ये लिबरेशन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बेईमान होने में क्या मजा और ईमानदार होने में क्या सजा लगती है? ये क्वेश्चन है जिस पर हमें कंटेम्पलेट करना चाहिए कि हम सबको क्यों ईमानदार होने में बहुत मुश्किल लगती है, बेईमान होना बहुत इजी क्यों लगता है। पता है, जैसे हम बेईमान होते हैं तो बहुत सारे लोग जो कि हमारे इर्द गिर्द बेईमान लोग हैं, उन सब से हमें अप्रूवल मिल जाता है। बहुत सारे लोगों का साथ मिल जाता है बेईमान होने में। जैसे आप किसी एक ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हो जहां आप चाहते हो कि मैं ईमानदारी से अपना काम करूं, तो हो सकता है आपको बहुत अवरोध सहने पड़े, बहुत ऑब्स्टिकल्स आए लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स आए। तो आप क्या चाहोगे कि प्रॉब्लम नहीं फेस करना चाहते, तो हम क्या चाहते हैं, अच्छा जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे ही हम कर लेंगे। अगर सब लोग झूठ बोल रहे हैं हम भी बोल रहेंगे, सब लोग रिश्वत ले रहे हैं हम भी ले लेंगे, सब लोग केक काम चोरी कर रहे हैं हम भी करेंगे। अच्छा हम सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तो भीड़ मिलती है, एक दूसरे का अप्रूवल मिलता है, एक दूसरे का सहयोग मिल जाता है और फिर हमें इसमें कोई भी रिस्क नहीं लगती है, इसलिए हम सब बेईमान होना चाहते हैं। लेकिन ईमानदार होने में पता क्या मजा है? हाँ, बहुत सारे पाखंडी लोगों की भीड़ छूट जाएगी। हो सकता है स्टार्टिंग में बहुत सारे कष्ट आए, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, लेकिन आप झूठ नहीं बोलते, आप अपने आप में झूठे ही नहीं होते। आप बोलते हो जैसे मैं हूँ वैसे मैं रहूंगा, जो चीज मैंने बोली है मैं उसको करता हूँ, उसको जीता हूँ। मतलब मैं जीवन को सत्य से जीता हूँ, अपने आपको प्रमाण रख के जीता हूँ, किसी और की नजरों का प्रमाण नहीं चाहिए, मैं अपने आपको प्रमाण बना के खुद जीता हूँ। तो इस ईमानदारी में कितना मजा होगा कि अब आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बन जाओगे और आपके भीतर में एक हल्कापन आएगा। जितने हम लाइट होंगे उतना हम एनलाइटनमेंट की और आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन अगर हम लाइट ही नहीं हुए, हम हल्के ही नहीं हुए, हम भारी बने हुए हैं, हम लगातार सोच रहे किसको क्या दिखाना, किसको क्या बताना, किससे क्या छुपाना, कहाँ पे क्या शो करना चाहिए, कहाँ पे क्या हाइड करना चाहिए। अगर हम इस तरह से हाइड एंड सीक में, शो एंड हाइड में चल रहे हैं, तो हम लोग ईमानदार नहीं है, और ईमानदार नहीं है यानी हम जैन नहीं है। अब बड़ी उल्टी बात मैं बोल रही हूँ क्योंकि इतना बड़ा जैन समाज है और मैं तो इतने सालों से जैन समाज के परिचय में रह रही हूँ, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग भी जो बहुत क्रियाएं करते हैं, तपस्याएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जहां भी बात आती है ईमानदारी की, बेईमानी की, वहां पता नहीं क्यों एकदम से बेईमान हो जाते हैं। एकदम से उनका चेहरा धर्म के स्थान पे कुछ और हो जाता है, घर पे कुछ और हो जाता है, सोसाइटी में बैठते कुछ और हो जाता है, फ्रेंड्स के बीच में कुछ और हो जाता है, फैमिली के बीच में कुछ और हो जाता है। जल्दी से बातें पलट देते हैं। और ये बातें पलटने की आदत उन्होंने कहाँ से सीखी? अपने एटमॉस्फेयर से सीखी। और ये सारी बातें क्यों चल रही है? क्योंकि हम लोगों के बीच में क्लैरिटी नहीं होती। हमारे भीतर प्रश्न है, हम अपने बड़ों से प्रश्न नहीं कर सकते। हमारे भीतर कोई लॉजिक्स उठ रहे हैं, हम उस लॉजिक्स को किसी के सामने रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि प्रश्न मत पूछो, प्रश्न पूछना गुनाह करना है। हमें सिखा दिया गया धर्म पे आस्था कर लो, जो बड़े लोगों ने कहा उसको चुपचाप मान लो, सवाल मत उठाओ, क्योंकि अगर तुम सवाल उठाते हो तो तुम गड़बड़ी पैदा करोगे। और जहाँ सवाल ही उठाया जाएगा वहां क्लैरिटी नहीं आएगी, जहाँ क्लैरिटी नहीं आएगी वहां पर आदमी में ईमानदारी कहाँ से आएगी? वो कंफ्यूज ही रहेगा। और इस तरह से चारों ओर कंफ्यूज लोगों का जाल बिछा हुआ होता है। और फिर ये कंफ्यूज लोग पता है क्या करते हैं? जब भी मिलते हैं एक दूसरे की तारीफ करते हैं, और जैसे ही उनसे दूर हो जाते हैं एक दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं।
और ऐसे ही चारों ओर हो रहा है। अगर हम आंख खोल के देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा जाल क्या है। लोग खुद ही जाल बुन रहे हैं, खुद ही उस जाल में फंस रहे हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में किसी तरह के जाल में क्यों ना फंस रहे हो। जाल सब जगह के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी ट्रैप्स, और हम सब किसी न किसी तरह की ट्रैप में है। अगर हमें दिखलाई पड़ने लग जाए तो हमें समझ में आ जाएगा हमें पाखंडी नहीं बनना, हिपोक्रेट्स नहीं बनना। हम जैसे भीतर वैसे बाहर हो जाए, और उसके लिए क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी के लिए नॉलेज चाहिए। इसीलिए फर्स्ट थिंग इज नॉलेज, एंड द सेकंड थिंग कि जब नॉलेज होगी तो क्लैरिटी आएगी, और क्लैरिटी आएगी तो आदमी ऑनेस्ट होगा, क्योंकि उसमें प्योरिटी आएगी। प्योरिटी आने का मतलब ऑनेस्टी आएगी, एंड दैट ऑनेस्टी इज टू बी अ रियल जेन। द वे टू बी अ रियल जेन इज टू बी ऑनेस्ट। ये दिखने में बहुत सरल सी बात लग रही है, लेकिन मैं जानती हूँ अप्लाई करना आसान नहीं। अब अप्लाई करने के लिए तो एक आदमी को खुद ही संकल्प लेना होगा कि हाँ मैं इसको अप्लाई करूंगा। मैं किसी भी जगह क्यों ना हूँ, किसी भी फील्ड में क्यों ना हूँ, मैं भीतर जो उठ रहा है वैसा बाहर करूंगा। उसका एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आपके बॉस ने आज आपसे पूछा कि भी आपने जो काम करके दिया, आज वो क्वालिटी इतनी मजेदार नहीं लगी जितनी आप हमेशा करते रहे हो, तो ऐसा क्यों। अब आपको आंसर देना है। अब आंसर को मैनिपुलेट भी कर सकते हो आप कि भाई आज एटमोसफेयर सही नहीं था, आज फला ठीक चीज ठीक नहीं थी, ये था वो था, किसी और पे जिम्मेदारी डाल सकते हो। और अगर आप ऑनेस्ट हो, आप कह सकते हो भाई मेरे भीतर में आज वैसा इंटरेस्ट नहीं था, मेरा मूड नहीं था, या मैं घर से झगड़ करके आया हूँ, आज मेरे को काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं था, मेरे भीतर ये डाउट आया था इस काम को लेकर के। आपके भीतर जो सिचुएशन आई है, आप उस सिचुएशन को एज इट इज बताते हो, इट मीन्स यू आर ऑनेस्ट। लेकिन आप अपनी सिचुएशंस को एज इट इज शो करने की बजाय किसी और पर अपनी जिम्मेदारी डाल रहे हो, इट मीन्स वी आर नॉट ऑनेस्ट विद इन आवरसेल्फ। अभी ऑनेस्टी ओनली ऑन बिजनेस फील्ड, in your family field, in your social field, in your anywhere, say anywhere, खुद के साथ हम ऑनेस्ट है या नहीं। अगर देखो ऑनेस्ट होंगे तो क्या होगा, हमारे दिमाग को ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ऑनेस्ट नहीं होते तो आदमी को कितना सोचना पड़ता है। जैसे आपने एक जगह झूठ बोला, या झूठ बोलने के लिए सोचा कि मैं यहाँ पे झूठ बोलूंगा, तो उस झूठ बोलने के सोचने के साथ ही कितनी 100 स्टोरी हमारा माइंड बनाता है। सपोज टेक्स्ट चोरी करने का सोचा, अब टेक्स्ट चोरी करने का एक सोचा मात्र है, अब आपके माइंड ने देखो काम करना चालू कर दिया, यहाँ पे ये करना होगा, वहां पे वो करना होगा, वहां पे ऐसे दिखाना होगा, ऐसे शो करना होगा। अब कितनी सारी फाइल्स हमारे माइंड ने जनरेट करी, क्योंकि हमने टेक्स्ट चोरी करने का सोचा है। हमने जरा सा बेईमान होने का सोचा, हमारे माइंड ने इतना कॉम्प्लिकेशंस जनरेट कर दिए। ये सब अब क्या होगा, हम कंफ्यूज हो गए, हम कॉम्प्लिकेटेड हो गए, हम स्ट्रेस में चले गए, और अब ये स्ट्रेस बाकी सारी बीमारियों को लेकर आएगा। जितनी भी बीमारियां, जितनी भी एलिमेंट्स है, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो मेंटल है, उन सब के गहराई में क्या है, कॉम्प्लिकेशंस। और कॉम्प्लिकेशंस क्यों है, क्योंकि हम खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं है। ऑनेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। और क्लैरिटी क्यों नहीं है, क्योंकि हमने अपनी समझदारी का उपयोग अपने आप की जिंदगी के मुद्दों पर कभी किया ही नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, समझदारी हमारे में है, अपने आप पे उपयोग करें। द सेकंड, ईमानदारी हमारे में आ जाए, जिंदगी में मजा आएगा। एंड द थर्ड पॉइंट, ये 2 पॉइंट आए, तो तीसरा पॉइंट भी साथ आएगा, जिसको आने से हम रियल जेन हो सकते हैं। वो क्या है, रियल जेन होने के लिए हमें एक बात समझना होगा कि वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर आवरसेल्फ, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवरसेल्फ। हम जो भी है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। दिस इज द थर्ड पॉइंट, इसको बोलते हैं जिम्मेदारी। फर्स्ट थिंग इज समझदारी, सेकंड इज ईमानदारी, एंड द थर्ड इज जिम्मेदारी। हम जिम्मेदारी लेना सीखे अपने आप की। अब हमारे यहाँ बड़ी गड़बड़ी क्या चल रही है, यूएसए में थोड़ा सा डिफरेंट माहौल है, इंडिया में बहुत डिफरेंट है। यूएसए में तो ये चीज बहुत जल्दी से समझ में आ जाती है लोगों को कि भाई हम खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने आप के लिए। तो यहाँ बच्चे भी अपनी जिंदगी को कैसे आकार देना है जल्दी से समझ लेते हैं। इंडिया में तो सालों सालों तक, युगों युगों तक एक ही बात चलती रहती है कि मेरे लिए कोई और जिम्मेदार है। चाहे वो तो परमात्मा जिम्मेदार है, चाहे तो पिछले जन्मों के कर्म जिम्मेदार है, चाहे तो हमारा सरकार जिम्मेदार है, चाहे तो हमारा समाज जिम्मेदार है, चाहे तो हमारा परिवार जिम्मेदार है। ये इंडिया में तो बहुत ज्यादा सोच है। यूएसए में एक मजेदार बात है, यहाँ लोग जल्दी से समझ जाते हैं कि भाई हम जो कुछ भी, उसकी जिम्मेदारी हमारी है।
तो पता है वो लोग अपनी डिसीजन मेकिंग पावर खुद बढ़ा पाते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए सतत जागरूक रहते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ कि अगर क्रियाओं की तरफ ध्यान न दे करके आदमी के अपनी मौजूदा स्थिति की तरफ ध्यान दिया जाए, अगर हम मतलब रिचुअल्स को ना सोचे और रियल लाइफ के साथ में जोड़ करके देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यंगर जनरेशन और जो कमिंग जनरेशन है वो ज्यादा ईमानदार है और ज्यादा वो जैन होने के करीब है, बजाय हमारी ओल्ड जनरेशन की। ओल्ड जनरेशन रिचुअल्स तो बहुत करती है, लेकिन जहां तक उनकी जिंदगी से जुड़े हुए सवालों की तरफ हम निगाह डालें, तो हमें समझ में आएगा कि वे अपने आप के साथ में इन क्वालिटीज के साथ डेवलप नहीं हो रहे हैं, वो केवल कुछ क्रियाओं के साथ डेवलप हो रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बहुत सालों से रात को खाना नहीं खाया होगा, बहुत सालों से जमीकन नहीं खाया होगा, बहुत सालों से लेकिन उन सब के बावजूद भी उनकी जिंदगी के अंदर हम देखते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस खत्म नहीं हुए। क्यों नहीं खत्म हुए? उनकी नजर अपने आप पर नहीं है, उनकी नजर सतत किस पर है? कुछ सिद्धांतों पर है, कुछ मान्यताओं पर है और कुछ दिखावे पर है, लेकिन अपने आप पर नहीं। तो यहाँ थर्ड पॉइंट जिसके हम बात कर रहे हैं वो बहुत इजी है। अगर हम ये समझ लें कि इस लाइफ में हम जो कुछ भी है उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है। हम जो बन रहे हैं, जो बिगड़ रहे हैं, अगर सुखी है, अगर दुखी है, तो हम जिम्मेदार हैं। तो पता इस पॉइंट को हम किस तरह से समझे? इस पॉइंट को हम ऐसे समझे कि जैसे आपको एक BMW कार दे दी गई या मर्सिडीज दे दी गई या और कोई रोल्स रॉयस दे दी गई है, कोई अच्छे बढ़िया से बढ़िया कार दे दी गई है। अब आप उस कार के मालिक हो गए, कार की चाबी आपके हाथ में, कार आप ड्राइव कर रहे हो। आप कैसे कार ड्राइव करोगे? बढ़िया से बढ़िया कार आपको जो मिली, एकदम जिम्मेदारी के साथ ड्राइव करो, पूरी जिम्मेदारी के साथ ड्राइव करोगे कि मुझे एक बहुत महंगी कार गिफ्ट मिली है और मुझे ड्राइव करनी है इसको, तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ड्राइव करोगे। तो उसकी कैसे केयर करोगे? बड़े अच्छे से केयर करोगे। बस ऐसे ही समझना कि जो ये जीवन हमें मिला है, ये पूरे अस्तित्व का एक बहुत सुंदर सा छोटा सा अंश हमारे साथ है। ये शरीर है, ये जो कुछ समय है हमें मिला है, ये जो धरती पर इस सुंदर प्लेनेट पर रहने का एक मौका हमें मिला है, तो वो समझो एक बहुत सुंदर कार के से भी बढ़ करके इतना बड़ा गिफ्ट हमें मिला कि मनुष्य का जो शरीर है ना, ये भी एक सुंदर सी कार की तरह ही है, व्हीकल ही है जिसमें हम ड्राइव कर रहे हैं। तो मुझे इस शरीर के साथ, इस मन के साथ, इस पूरे वातावरण के साथ कैसे रहना है? जैसे मैं उस कार की केयर करूंगी, क्या मैं अपने आप की केयर नहीं करूंगी? जैसे मैं अपने पैसों की केयर करती हूँ, वैसे मैं क्या अपने इमोशंस की केयर नहीं करूंगी? लेकिन पैसे की केयर करना तो हमें सिखाया गया, पर अपने इमोशंस की केयर करना नहीं सिखाया है। हम अपने इमोशंस को मिसयूज करते रहते हैं, हम अपने थॉट्स को मिसयूज करते रहते हैं, हम अपने इंटेलेक्ट का मिसयूज करते रहते हैं, हम अपने टाइम का मिसयूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें समझ ही नहीं रहे हैं इसके लिए हमें मिला हुआ गिफ्ट है, या इसको समझो हमने अक्वायर्ड किया, बड़ी मुश्किलों से हमने इसको प्राप्त किया है, अब मैं इसकी कैसे केयर करूं? आई एम द रिस्पॉन्सिबल, और मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। आई हैव दैट एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड वेरी वेल। तो मैं क्यों ना करूं? अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए तो हम अपने आप का रिस्पेक्ट करेंगे, इस जीवन का रिस्पेक्ट करेंगे। और जो अपने आप में प्रेम पूर्ण रह सकता है वो किसी और के साथ कभी बगैर प्रेम के नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमारे पास होगा वही तो हमसे फैलेगा। अगर हमारे भीतर प्रेम होगा तो एटमॉस्फेयर में भी प्रेम फैलेगा। लेकिन यहाँ पे पहली प्रॉब्लम जो हम समझे अपने आप की लाइफ के साथ में, कि मोस्टली हम सारे लोग कंप्लेनिंग होते हैं, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। कोई नहीं देखता जो मिला है हमने उसके प्रति अपने क्या रिस्पॉन्ड किया। अगर हम अपने आप में प्रेम से हो जाते हैं, अपने आप में कॉम्प्लेक्स लेस हो जाते हैं, अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो जाते हैं, तो पता है क्या होगा? हमारे भीतर से जो प्रेम पैदा होगा, जो एक केयरिंग पैदा होगी, जो एक जागरूकता पैदा होगी, और वो जागरूकता पूरे वातावरण में भी फैलेगी। और तब क्या होगा? जागरूक व्यक्ति के साथ रहने वाले लोगों में जो जागरूकता आती है, तो उससे पूरा माहौल इतना सुंदर बन जाता है। इसको ऐसे समझना
कि घर में एक दीपक जल रहा है, अगरबत्ती जल रही है, खुशबू फैल रही है, तो पूरा माहौल कैसा हो रहा है। ऐसे ही जिसके भीतर दीपक जल रहा है उसकी जिंदगी प्रकाशित होने लगेगी। एंड दैट प्रकाशित होना ही इस जीवन में आने पर अपनी जीवन की यात्रा को सही दिशा में ले जाना है। अगर हम भीतर से प्रकाशित होके जीते हैं तो हम सही दिशा में जा रहे हैं। और हर एक में एक क्वालिटी है ही, हर एक अपने आप में एनलाइटन होने के लिए यहाँ पर है और हो ही सकता है। और ऐसे समझो कि है ही, बस केवल इतनी ही अंतर है कि हमारी निगाह अपने आप पर नहीं है। एक थर्ड क्वालिटी जो हम अपने आप में अगर थोड़ी सी डेवलप करें, थोड़ा सा सजग हो जाए कि हमें जो मिला उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, तो हम कैसे इसको बेस्ट वे में रिस्पॉन्ड करें। हम जो है उसके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल है, तो हम अपने आप को कैसे हो जाए, कैसे बने, कैसे जिए। अब कैसे जिए वर्ड जब आएगा तो उस कैसे जिए में सारी चीजें आ गई, ऑल कोड ऑफ कंडक्ट्स आ गए। अब जितने भी कंडक्ट्स की बातें हम करते हैं, आचरण की बातें करते हैं, चारित्र की बातें करते हैं, संयम की बातें करते हैं, वो सारी बातें इसलिए नहीं करनी है कि इससे हमें कोई स्वर्ग मिलेगा या कर्म कटेंगे या मोक्ष मिलेगा, बल्कि ये सारी चीजें हमारी अपनी समझ से हमारे में डेवलप होगी कि मेरे पास जो कुछ है मैं उसको बेस्ट वे से कैसे रिस्पॉन्ड करूं, बेस्ट वे से कैसे लूं इसको, तो कितना मजा होगा। तो हमारा कहना यह है कि धर्म की कोई बात जब तक बाहर से ऊपर थोपी जाएगी तब तक वो सही नहीं होगी। जब तक हम ऊपर से कुछ चीज को ओढ़ रहे हैं तब तक वो चीजें छूट ही जाएगी, आज छूटे कल छूटे, छूटेगी। लेकिन जब कोई चीज हमारे अनुभव से हमारे जीवन में आती है, हमारी समझदारी से आती है, तब उसका इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। हमारे एक्सपीरियंस के साथ जब हम ग्रो करते हैं तो वो हमारी जो ग्रोइंग है, वो जो हमारी जिंदगी के अंदर एक फ्लावरिंग होती है, वो फ्लावरिंग मजेदार होती है, वो हमें रियल मी बनाती है, असली आत्म स्वरूप को हम जानने लगते हैं। और नहीं तो क्या होता है, हम बातें तो करते हैं कि हम आत्मा है, हम परमात्मा है, लेकिन हमारा कोई अनुभव नहीं होता, और तो ये सारी बातें खोखली हो जाती है। तो जैनिज्म को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए हमें सिद्धांतों में उलझने की बजाय केवल छोटी छोटी शब्दों को मैं बात कर रही हूँ, इन 4 क्वालिटीज के साथ में कैसे सतत खुद को डेवलप करते जाना है। हम डेवलप होते गए तो हम जैन होने जैसी एक योग्यता पा लेंगे, एक पोस्ट पे आएंगे कि हाँ, नाउ वी आर रियल जैन। यहाँ जैन होने का मतलब किसी कास्ट से रिलेटेड नहीं है और किसी रिचुअल से रिलेटेड नहीं है, ये है अपने आप के साथ में कैसे हम प्रकाशित होकर जिंदगी जिए, खुद के प्रकाश से जिए, वो होना रियल जैन होता है। उसके लिए फर्स्ट पॉइंट समझदारी, एंड द सेकंड पॉइंट जो हमने बात की वो ईमानदारी, एंड द थर्ड पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जिम्मेदारी। हम अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू करें। यहाँ पे एक बात और समझ सकते हैं हम चाहे तो, कि अब तक हम सब ने बहुत सारी दूसरों की जिम्मेदारियां ओढ़ी है और पूरी जिंदगी हम इसी में लगे रहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए, लेकिन हम खुद के लिए कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं बने। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सबसे पहली आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खुद के प्रति है। हम खुद को प्रेमपूर्ण, ज्ञानपूर्ण, आनंदपूर्ण रखना सीखे, तभी वो चीजें फैलती हुई पूरी दुनिया में फैलेगी, हमारे चारों ओर फैलेगी। जैसे फूल अगर सही दिशा में आया है, फूल अगर खुशबू के साथ प्रफुल्लित हुआ है तो उसकी खुशबू चारों ओर फैलेगी। ऐसे ही चौथा पॉइंट हमारी जिंदगी में आएगा, वो क्या है कि जिसके अंदर समझदारी आई, जिसके अंदर ईमानदारी आई, जिम्मेदारी आई, उसने अपने आप की जिम्मेदारी लेना सीख लिया है। अब फोर्थ पॉइंट आएगा कि अब जीवन में कैसे भी संघर्ष आ जाए वो आदमी डरेगा नहीं, उसके अंदर बहादुरी आएगी। जैन होने का मतलब बहादुर होना है, टू बी करेजियस। लेकिन हम लोग देखते हैं अक्सर जैन लोग डरपोक नजर आते हैं, उनके चेहरे पर भी बिल्कुल भी विश्वास नजर नहीं आता कि नहीं वो मस्त है, वो स्वस्थ है, वो अपने आप में करेजियस है, वो नई चीजों को सीखने के लिए, जानने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए तत्पर है।
अगर ऐसे नहीं है तो हम जैन नहीं हो सकते। जैन होने का मतलब मैं फिर से कहना चाहूंगी, जो चली आ रही रिवाजों के साथ हम जैन को जोड़ रहे हैं, मैं उस जैन की बात नहीं कर रही, मैं उस जैन की बात कर रही हूँ जो असली अर्थों में जैनत्व को जी रहा है, रिवाजों से। और ये यूएसए में मजेदार बात है कि वहाँ कस्टम्स नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो ऐसा अभी भी सोचते हैं जैन यानी किचन रिलीजन, जैन यानी ये खाना ये नहीं खाना, जैन यानी ये करना नहीं करना। तो मैं फिर से कहना चाहूंगी कि जैन होने के नाम पर जितनी बातें प्रचारित की गई है, ये सारी बातें उन लोगों ने कही होगी जिन्होंने असली अर्थों में जैन होने का अभी अनुभव नहीं किया है। क्योंकि महावीर की अहिंसा कभी अदर ओरिएंटेड थी नहीं कि ये खाओ मत खाओ, इसमें जीव है उसमें जीव नहीं है, ये सब बात में चलाई गई बातें हैं। उनका एक ही बात था, जिसने अपने लाइट अपने भीतर की लाइट जगा ली ना, अब उसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं उसको क्या करना है क्या नहीं करना। जिसके भीतर लाइट आ गई और वो खुद ही अपनी आंखों से देख लेगा, अपने विवेक से समझ लेगा कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। उसको किसी और के द्वारा दिए गए थोपे गए किसी भी आचरण के सिद्धांत के नियमों की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी ज्ञानी पुरुष ने, किसी भी तीर्थंकर ने कभी भी आचार शास्त्र का ज्ञान नहीं दिया। आचार का ज्ञान दिया आचार्य ने, और आचार्य का काम था कि वो जिन लोगों पे काम कर रहा है, जिस ग्रुप ऑफ पीपल के साथ काम कर रहा है, वो उनको इंटरेक्ट करते हुए उनको कैसे उनकी यात्रा में सहयोग दे सके, उनके लिए वो कुछ नियम लिखता है, उनके लिए कुछ बातें बताता है। तो ये बात हो गई थी बिल्कुल एक गुरुकुल की तरफ, लेकिन हमने उन सब चीजों को इतना कॉमन बना दिया कि जो उस गुरुकुल में है या नहीं है, हमें लगता है सबको इन नियमों का पालन करना चाहिए। अब यहाँ गड़बड़ी हो गई। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं चाहूंगी जब इंटरेक्टिव सेशन होगा और लोग सवाल करेंगे तब हम ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे, लेकिन चौथा पॉइंट पहले हमें पूरा कर लूं, वो है बहादुरी। जैन होने का मतलब बहादुर होना है, डरपोक होना नहीं है, कायर होना नहीं है। और बहादुर होने का मतलब है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, मैं अपनी समझदारी, ईमानदारी और जवाबदारी से हटूंगा नहीं। अगर जो अपनी तीन क्वालिटीज के साथ सतत ग्रो कर रहा है, दैट इज रियल बहादुर। अब इन चारों शब्दों को मैं वापस एक बार बोलना चाहूंगी। ये चारों शब्द के साथ अगर हम थोड़ा सा समझ ले, तो समझदारी मतलब ज्ञान, ईमानदारी मतलब दर्शन, जिम्मेदारी मतलब चारित्र, और बहादुरी मतलब तपस्या। तप, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। ये तीन ज्वेल, तीन रत्न जो है, वही हमारे जीवन में है, सबके जीवन में है। बस उनको अगर हम राइट डायरेक्शन में यूज कर सके तो यही मार्ग मुक्ति का मार्ग है, एंड दैट इज द रियल वे टू बी जैन। जैन होने का सही तरीका या जैनिज्म को अपनी लाइफ में अप्लाई करने का सही तरीका क्या है? समझदारी मतलब सम्यक ज्ञान, ईमानदारी मतलब सम्यक दर्शन, जिम्मेदारी मतलब सम्यक चारित्र, और बहादुरी मतलब सम्यक तप। ये चारों गुण हमारे जीवन में हम सतत बढ़ाते जाएं, सतत जागरूक होके जीते जाएं, सतत जानकार बनते हुए जीते जाएं, तो वो ही चारों गुण हमें सतत लिबरेट करेंगे। अब प्रश्न किससे लिबरेट करेंगे? हमारे अपनी कंडीशनड सेल्फ से हमको लिबरेट करेंगे। हमारी अपनी पुरानी सोच से, खोल से, मान्यताओं से हमें मुक्त करेंगे। और तब क्या होगा? हमारे अंदर सारा अंधेरा नहीं रहेगा, हम लाइट होंगे और इनलाइट होंगे। लाइट होना ये सिम्टम हमें बता रहा है कि हम राइट वे पर है, राइट पाथ पर है। और इनलाइट होना ये बता रहा है कि नाउ वी आर, मतलब वी आर लीडिंग आवर लाइफ टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। और तब मजेदार जिंदगी हो जाएगी। आनंद से हम जिए, आनंद ही हमारा लक्ष्य है। और उस आनंद को सतत बनाने के लिए हमें अपने आप को डेवलप करने की आवश्यकता है। और उस डेवलपमेंट के लिए हमें ये चार क्वालिटीज को सतत अपने सामने रखना होगा। ये बात आपने सुनी है, लेकिन केवल सुनने से तो काम नहीं होगा, सुनने के साथ उसको बुनना भी होगा, भीतर उतारना होगा, बार बार सुनना होगा, और अपने सामने रख करके जीना होगा कि क्या मैं चारों के साथ चल रहा हूँ। अगर चारों के साथ चल रहा हूँ तो एक लक्षण होगा कि हमारे अंदर हल्कापन और खुशी पैदा होगी, आनंद पैदा होगा, और बस वही हमें अपनी राइट दिशा में लेकर के जाएगा। ऐसा लग रहा है कि समय मेरे को जितना समय दिया गया उतना पूरा हो गया है। अब मैं अपनी बात को यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ।
और चाहूंगी कि आप में से किसी के भीतर कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेरी हो, आप जरूर पूछिए। आप इस पब्लिक डोमेन पे भी पूछ सकते हैं, पर्सनली मुझे मेल भी कर सकते हैं, और आनंद जी को प्रश्न भेज करके मेरे पास तक प्रश्न आ जाएगा, कैसे भी भेज सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। जय हो। जय हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सेशन रहा. It was very easy to understand, easy to follow. Thank you so much for very simple, very easy to understand, but I think my opinion, very profound principles, right, that everybody can apply in their day-to-day life. So I know we have a lot of visitors also dial into WebEx today because we have shared the details of this meeting with a lot of other groups to to get maximum advantage of your knowledge. Maybe we can spend a few minutes if anyone have any quick questions. आप आपका अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं वैभव श्री जी को. अगर आपको माइक अनम्यूट करके बोलने में दिक्कत है तो यू आर वेलकम टू टाइप इट इन द चैट and I'll be happy to read it to her. Hello, Vaibhav Shriji. Can you hear me? Yes, I can. Okay, thank you. First of all, this has been a profound has brought profound change in my life since I'm listening to your lectures, and thank you making it so easier for us to understand. So thank you for your discourse, and I will be listening to some more. My question is, you said that the self-realization will come as you study your own self. Yes. So Vaibhav Shriji, ये क्या होता है यहाँ कि everybody has a different understanding or self-realization, or everybody has a different threshold. अगर मैं self-realization करूँ तो मेरा self-realization, oh, I am self-realized and my Jainism will be this or that. तो उसमें कोई consistency नहीं रहेगी. Everybody has different understanding of a self-realization. Everybody will have a different threshold. Everybody will have a different limits, and they will all will understand different from each other what Jainism really is. Any thoughts? बोलिए. आपको yeah, I'm asking you, अगर सब everybody follows their own instinct into what Jainism is, आपने बताया सब everybody will realize it by themselves कि कहाँ लिमिट लगानी है, क्या क्या करना है. So Yes. सबकी पहचान will be different in a Jainism कि क्या true Jainism है. तो this is what we want कि everybody will have different understanding of Jainism. देखिए, अगर कोई व्यक्ति अंडरस्टैंड कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो रियलाइजेशन के मोड पे जाएगा, और जो रियलाइज करता है वहां कभी भी डिफरेंस नहीं होते हैं. डिफरेंस होते हैं केवल हमारे एक्सप्रेशंस में. मतलब हमने जो एक्सपीरियंस किया है वहां आप एक्सपीरियंस करो, मैं करूं, कोई और करे, कोई किसी भी देश में बैठ करके करे, किसी भी एज में बैठ के करे, अगर किसने सेल्फ रियलाइज किया है देयर इज नो डिफरेंसेस. मतलब जो महावीर को अनुभव हुआ वही ऋषभ देव को अनुभव हुआ, वही संभवनाथ जी को अनुभव हुआ, वही पारसनाथ जी को अनुभव हुआ. अनुभव में कभी कोई फर्क नहीं होता है. लेकिन आपका प्रश्न है कि जैनिज्म को कोई अलग अलग तरीके से अंडरस्टैंड करता है. बात जैनिज्म की नहीं है. जैनिज्म तो एक पाथ है, एक वे है जिससे हम अपने आप को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. उसके लिए उन लोगों ने जिन्होंने जान लिया है उन्होंने कुछ बातें बताई है, तो वो बातें हमारे लिए गाइड की तरह है. लेकिन हमको उस गाइड को लेकर के पकड़ के नहीं बैठना है. उस गाइड को लेकर हमें खुद को अपनी जर्नी करनी है. हम में से हर व्यक्ति को अपनी जर्नी करनी होगी. इसके लिए हमें गाइडेंस के लिए इन तीर्थंकरों की, इन ज्ञानी पुरुषों की जो वाणी मिली है वो गाइड के लिए मिली है. अब उस वाणी को किसने किस लेवल पे समझा है वो डिफरेंट बात है. लेकिन समझने से ज्यादा जरूरी क्या है कि आपने जितना भी समझा है उसको आप अप्लाई करो. जब अप्लीकेशन होगी तो रिजल्ट आएगा.
अभी क्या हो रहा है हमारे पूरे जैन समाज में, हर व्यक्ति ने बहुत प्रवचन सुन लिए, बहुत प्रवचन दे लिए, लेकिन प्रवचन ही प्रवचन हो गए, कोई अप्लाई नहीं कर रहा है। जब अप्लाई करेगा और अपने रियल सेल्फ के साथ ईमानदारी से अगर ग्रो करने लगेगा तो ऑटोमेटिकली वो किसी एक पॉइंट तक पहुंचेगा, और उसका एक्सपीरियंस तक चला जाता है तो उसके बाद में उसके पास कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। जब तक एक्सपीरियंस नहीं है तब तक सारे डिफरेंसेस है। फिर से समझना, सम्यक दर्शन यानी आत्मानुभव, उसमें कोई भेद नहीं होता, लेकिन ज्ञान यानी एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशंस जो है, अभिव्यक्ति जो है, वो सबकी अलग अलग ही होती है, जुदा जुदा ही होती है। तो अभिव्यक्ति में कोई किसी तरीके से बोल रहा होगा, कोई किसी तरीके से, उस पर कभी मत जाओ। इस बात पे जाओ कि किसी की भी कोई भी एक्सप्रेशन से आपके भीतर कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। जैसे आपने किसी को सुना और सुनकर के आपके भीतर कोई समझ आई, अब उस समझ को अप्लाई करो। जैसी एप्लीकेशन आएगी आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा, आपकी जिंदगी के अंदर कुछ हल्के होगे और फिर इनलाइटेंड होते जाओगे। अब आपको अनुभव हो गया तो बाकी सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर खाली बौद्धिक रूप पे अटक के रह गए, इसने ये कहा, उसने वो कहा, ऐसा माने कि वैसा माने, तो इन डिफरेंसेस का तो जन्मों जन्मों तक भी कभी समाप्ति होने वाली नहीं है। ओके, गॉट इट? Thank you so much. This is a really new direction. First time I seen Samyak Gnan, Samyak Darshan, Samyak Charitra. How you aligned with Baduri or all these different concepts. Thank you so much. थैंक यू, वेलकम। Thank you, Pankesh. We can take probably one more question if anyone wants to ask. And as she reminded, if you're camera shy or maybe you have not internalized all the thoughts yet, So ask if one you have question. any questions, you can relay those to me in the future. I had one question, Anand. So Yeah, go for it. understand. Yeah, I thank you so much, Vaibhashji. It was very. I'm not a native Hindi speaker, but it was still. I was still able to understand you, so thank you for that. My question was about the niyams. I understand that जो लोग blindly niyam follow करते हैं, that may not be the right thing to do. लेकिन अगर अनुभव होने के बाद और जानने के बाद जो नियम पालते हैं, that is probably the right thing to do, right? I mean, as long as they're not forcing it on others, and maybe by seeing those people, others might also follow. I don't necessarily think that applying niyams is a bad thing. So, what do you think about that? देखो, जो लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं किसी भी नियम को, मोस्टली उनके पास कुछ कुछ बिलीफ सिस्टम्स है, और उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि उन बिलीफ सिस्टम्स की वजह से ही वे कभी भी मुक्त नहीं हो पा रहे। हमेशा बाउंड्रीज फील करेंगे, अपने भीतर भी बाहर भी। और जब हम मुक्ति के पथ पे जा रहे हैं तो बंधन में बढ़ते जाएंगे तो मुक्त कैसे होंगे? तो जो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं उनको जरूरत है कि वो कंटेम्पलेट करें, वो आत्मचिंतन करें कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे भीतर से आ रहा है, मेरी अपनी अनुभव या समझ से आ रहा है, या मैं किसी के प्रभाव में आके कर रहा हूँ। और नियम ये कि जो भी क्रिया हम किसी के प्रभाव में आके करेंगे, हम उसके अपोजिट पोल पे वापस जाएंगे ही जाएंगे। तो उन लोगों की लाइफ में हम भी देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, आपके चारों ओर भी होंगे, मेरे चारों ओर भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है कि जिन्होंने कोई भी क्रिया को कभी किसी प्रभाव में आके किया है, वो बाद में उसके अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। खैर, वो हमारा क्वेश्चन है। आपका सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ने अपने अनुभव के बाद उनके भीतर कोई नियम आया है तो वो उनका स्वभाव है, अब वो नियम उनका विवेक है, वो नियम नहीं है। विवेक और नियम में फर्क है। विवेक का मतलब है अपने लाइट में चलना, और नियम का मतलब है किसी और के द्वारा दिया गया या खुद ने ही ओढ़ा गया, खुद ने ही ग्रहण किया गया किसी एक पर्टिकुलर क्रिया में जाना। अब पर्टिकुलर क्रिया में जाना तब तक गलत नहीं है जब तक कि आप खुद को डेवलप करने के लिए खुद पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। हमको खुद को डेवलप करने के लिए, खुद पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारे नियम खुद से लेने होते हैं। अगर हम लेते हैं तो कोई बुरी बात नहीं इसके अंदर में, लेकिन वो हमारे अंदर से आने चाहिए। सवाल इतना ही वो हमारे भीतर से आने चाहिए, तो बड़े मजेदार होते हैं। जैसे मैं इसको कई बार इस एग्जाम्पल से बताती हूँ कि जिस व्यक्ति को लगता है मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंसी का मेरा ये फाइनल ग्रुप है, एग्जाम्स है, और एग्जाम्स के लिए मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, अब उसके भीतर से आते हैं कि मुझे तैयारी के लिए करना है तो मुझे
मूवीज देखने नहीं जाना है, मुझे मटर गश्ती नहीं करनी है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे व्हाट्सएप पे चैटिंग नहीं करनी है, वो सारी चीजों को बंद करके अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगाता है। अभी उसके भीतर से आया ना, अब उसे यूं तो उसकी मम्मी बोले चैटिंग बंद कर तो वो नहीं करेगा, लेकिन अब उसको समझ आएगा मेरे को एग्जाम के लिए तैयारी करना है, वो खुद ही कर रहा है। दैट इज गुड। अब वो नियम भी तो उसने अपने से ही लिया है, लेकिन उसने क्यों लिया, उसके पास रीजन क्लियर है, और अब वो अपने नियम के साथ ऑनेस्ट है, क्योंकि उसने भीतर से आया है नियम। ऐसे कोई नियम आ रहा है तो मजेदार बात है, लेकिन कोई हमें ऊपर से दे रहा है, या कोई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, तो हम सब बिलीफ सिस्टम में जा रहे हैं तो गड़बड़ी हो जाएगी। एक पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट, जो अनुभव के बाद में जीता है कोई आदमी, वो नियम नहीं है, वो तो उसका विवेक है, वो उसका मौज भी है, उसकी मौज है, उसको खाए ना खाए, जैसे महावीर की मौज है, अब खाए ना खाए, बोले ना बोले, चले ना चले, उनकी मौज है। तो किसी की मौज से कुछ होता है तो वो कोई नियम नहीं है। अब उससे कोई प्रभावित होता है नहीं होता है, तो सामने वाले की अपनी दशा है, कौन किसका क्या प्रभाव लेता है, उसके ऊपर तो कोई दूसरा का कोई वश नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे महावीर जैसे बुद्ध पुरुषों के पास रह के भी कोई लोग खाली उनके आचरण को देखते हैं, और कोई लोग उनके भीतर की चेतना से जुड़ते हैं। और मैं ये कहूंगी यहाँ पे अपने अनुभव के साथ में, कि कभी गुरुओं के भी या किसी भी ज्ञानी पुरुषों के हम बाहरी क्रियाकलापों को देख के अटक जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो बड़े लीलाधर होते हैं। उनकी मौज को देखो कि वो सदा आनंदित रहते हैं, उनको कोई स्ट्रेस में नहीं डाल सकता है। वो जो कभी स्ट्रेस में नहीं जा सकते, वे मौजी लोग, वो जो ज्ञानी लोग हैं, उनकी आत्मा को प्रणाम है। और उनकी मौज की जैसी हम सबके भीतर भी मौज है, वो प्रकट हो सकती है अगर हम डूज और डोंट्स की बातों में अटके नहीं तो। ओके, Thank you. जय हो। Okay, I think we'll bring this Q&A to conclusion now. Thank you once again, from the bottom of my heart, on behalf of the entire community. आप हमारे बीच आए, even though it's quite late in India. Thank you for spending some time with us. For those again, who might be new to Vaibhav Ji, we have a weekly Sunday Swadhyay that we send out communications. So just look forward to those emails. If you would like to join, we have been discussing Uttaradhayan Sutra during those Sunday Swadhyayas. So the next session will be obviously tonight, and then every Sunday we have it. So if you are on the Jain Study Center mailing list, you definitely will get all the regular emails. Now I realize that we have a number of guests, as I mentioned at the beginning of the meeting. So we will spend a few minutes now with a few administrative announcements, because this is also a monthly meeting for the local Raleigh Jain community. So everybody is welcome to stay for as long as they want to. But if anyone wants to drop off, I'll give everyone about a minute or so to drop off, and then we will shift. Thank you, Anil Shah ji, for inviting us. And now, कल सुबह मेरे यहाँ तो 6:30 होगा इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग, तो सुबह 6:30 में वापस उत्तराधर सूत्र के साथ हम बातचीत करेंगे। मिलते हैं। जय हो।